Hello and welcome to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and the Airwise app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. And the news out of Bangalore is that Australia have concluded their innings. Pakistan now in the dressing room getting ready to put up that chase. What explosive batting there by Australia. ये scorecard आपकी screen के ऊपर लेकर आते हैं 1 minute के लिए to show you what went down. The openers putting up a tremendous partnership right on top. Do centuries right there, Warner and Marsh. Look at that. Then Maxwell came in with a lot of intent, but unfortunately that intent couldn't translate into any runs, and that kind of gave them some reprieve, some breathing margin to the Pakistani bowlers. And then Pakistani bowlers did a decent recovery, because at one point it looked like this could be a 400 plus target. It has been restricted to 367. Could it have been any better? Well, we'll just talk to our experts about that. Pakistan now getting ready to chase that. Bengaluru is a kind of a favorite ground for Pakistan to put up chases or win games here. Now, with me in the pavilion, I've got 4 Pakistani former captains, 4 outstanding minds in the game of cricket, 4 gentlemen who served the game of cricket in Pakistan really well. I've got with me the young dynamic Shoaib Malik. Shoaib, thank you and welcome. With that, Misbah ul Haq. Misbah, welcome. Thank you. Moin Khan. Moin, welcome. Thank you. And the great Wasim Akram. Wasim, welcome. Let's get straight to it, because I think जो सबसे बड़ी और सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर आप पाकिस्तान का बॉलिंग कार्ड देखें, और हम इसके ऊपर एक्सटेंसिवली गुफ्तगू करेंगे वसीम ऑफ कोर्स पोस्ट मैच के अंदर, तो you look at the शाहीन शाह फिगर्स, you look at everything, but interestingly अगर आप ये देखें इफ्तिखार अहमद को, ये आपकी नज़र पे सामने आ रहा है स्क्रीन पे, इफ्तिखार अहमद ने 8 ओवरों में 37 रन दिए. He was the most economical today at a very good average of 4.62, and then you had Mohammad Nawaz also at a good average of 6.14. Don't you think इनसे और ओवर्स करवाने चाहिए थे बाबर को, और how would you like to, or Misbah, would you like to comment on that? बिल्कुल. देखें, ऐसे मैच में यही डिफरेंस होता है जब आप हाई स्कोरिंग ग्राउंड में खेलते हैं, जहाँ आपको पता है कि एवरेज स्कोर इज़ 300 प्लस, तो आपके सर नहीं गिरते. आपको अगर इनिशियली 10 ओवर्स में ठीक है, कैच ड्रॉप हो गया, इट हैपन्स. क्रिकेट का हिस्सा. ये तो नहीं कि आप उस कैच पे पूरा मैच डाल के बैठ जाएं और कहें कि लो जी गेम ख़त्म हो गई. ये नहीं होता. आपको कोशिश करनी होती है कि यार अगर हम 25-30 रन भी जहाँ पे बन रहे हैं वो कम अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं तो वी हैड अ चांस. ये तो नहीं कि अगर 300 बन रहे हैं तो हम 300 की बजाय 350 करवा दें. तो वो बॉडी लैंग्वेज जिस किस्म की, और कहीं ना कहीं फील्ड प्लान्स, बॉलिंग प्लान्स, मुझे लगता है इवन कैच ड्रॉप होने के बाद भी अगर बेहतर करते तो मुझे लगता है 35-40 रन का फ़र्क पड़ सकता था. और कम होते और फिर पाकिस्तान के पास चांस तो खैर कभी भी होता है क्रिकेट में, लेकिन बेहतर चांस होता है पाकिस्तान के बाद. मुझे लगता है कि अभी भी हम वही कन्वेंशनल्स पे जा रहे हैं. प्लान ए वर्क कर गया, नहीं किया तो फ़ौरन सर नीचे, और फिर हम अपोजिशन के रहमो करम पे अपने आप को छोड़ देते हैं, और बाद में फिर रिग्रेट करते हैं जब मैच किसी ऐसी सिचुएशन में आता है कि कहीं यार ये रोक लेते हम, 30-40 या 35 रन कम देते, हो सकता है हमारा चांस बन जाता. What went wrong with Haris Rauf today? Because he got taken for a lot of runs, almost 10.37 की economy rate उनका रहा है. Was there कोई line की problem थी, length की problem थी, या Australian batsmen were just too dominating? I think to start off with, when the opposition are 258 for none, it's done. It's done. Game kind of over, I suppose. Done. And then they made a comeback. Shaheen got 5 wickets for 54. Haris Rauf 83 for 3. I mean, he's our main bowler. He's 150 plus. अगर उसको पहले ओवर में 24 हो जाएगा, वो भी वनडे में, तो there's a problem. Catch drop होते रहते हैं वो. You have to move on very quickly. This World Cup है. Nobody's there to hold your hand. You're a grown-up man. You got to take it, grab the horn by the bulls. और वहाँ पे fielding के हमने बड़ा कुछ देखा है. But I mean, it was a tough, even for me watching cricket when the opposition started. पहले 10 ओवर के बाद जब स्कोर देखा और उसके बाद देखा कि अभी 40 ओवर बाकी हैं, जब टीम का ये हो कि आप वेट कर रहे हो कि अभी 35 ओवर कब खत्म हो गए, समझो इट्स ओवर. It is. मोइन ड्रॉप कैचेस की बात की वसीम ने, क्योंकि कैच गिर जाते हैं, बट ये बड़े ज़बरदस्त हैं. हमारे जो कैचेस आज गिरे वो हम रात को दिखाएंगे भी आपको. वार्नर पहले 10 पे उनका कैच ड्रॉप हुआ, फिर 109 पे उनका दूसरा कैच ड्रॉप हुआ, वो 150 रन कर गए. एंड शुक्र है कि स्मिथ ने इतना डैमेज नहीं किया, वरना बाबर आजम से उनका स्लिप में कैच ड्रॉप हो गया. The old saying is catches win matches. बिल्कुल 100% ऐसा है, बट कैच ड्रॉप होना चाहिए, और मिसबा ने जैसे बोला सर ड्रॉप नहीं होना चाहिए. कैचेस ड्रॉप के बाद सर ड्रॉप हो गए. आई थिंक जो एंड में मोमेंटम है, सबसे पहले तो मैं टॉस की बात करूंगा. यहाँ पे पाकिस्तान टीम को टॉस जीत के
जो उनको बैटिंग दी है, मेरी नज़र में मैं समझता हूँ कि गलत फैसला था, बिकॉज के ऑस्ट्रेलियन बैटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। अभी हमने रिसेंटली मैचेस देखे, उनको मुश्किल ये हो स्ट्रगल कर रही थी, नहीं कर रही थी इससे पहले, इस मैच इससे पहले कर रही थी। हमने दावत दी उनको पहले बैटिंग करा के, ताकि वो खुल के शॉट खेल सकें, फॉर्म में आ जाए, फॉर्म में आ जाए जी ना। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान को यहाँ पे बैटिंग करनी चाहिए थी। दूसरी, कैचेस तो ड्रॉप हुए, लेकिन उसको कैच बड़ा ज़बरदस्त किया ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने। इतनी बड़ी पार्टनरशिप, आउटस्टैंडिंग, सिंपली वर्ड्स है उनके लिए। लेकिन पाकिस्तान का ये जो मोमेंटम एंड में पाकिस्तान के पास आया है ना, जो आखिरी 16 ओवर्स में सिर्फ 108 रन यहाँ पाकिस्तान ने दिए, जो कि लग रहा था 400 हो जाएंगे। तो आई थिंक यू नेवर नो, अगर अब्दुल्ला शफी ठीक है, उनकी जो बॉल लगी है, अभी तक हमें खबर नहीं मिली, हम इंतजार के लिए। अगर पाकिस्तान को अच्छा मोमेंटम मिल जाता है फर्स्ट 15 ओवर्स के अंदर, यहाँ 100-125 रन अगर लगते हैं, अच्छा खेलते हैं, देन लेटली ड्यू आएगी तो इजी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है टोटल। आपका भी वेट करना पड़ेगा, Leslie वेट में वही पहले 10-12 ओवरों में 3-4 आउट हो जाओ, वो ड्यू का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल नहीं, फर्स्ट 10 ओवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 70-80 रन भी बन जाते हैं, मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, नीचे एंड में हमारे पास है, इतनी स्ट्रेंथ है कि हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी इस टाइम पे मेरा नहीं ख्याल है कि ड्रेसिंग रूम में के हौसले बिल्कुल डाउन। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, आई एग्री विद यू देयर। शुएब, हमने श्रीलंका के खिलाफ भी 350 रन का एक टारगेट अभी रिसेंटली बिल्कुल चेज किया हुआ है, इसी वर्ल्ड कप के अंदर किया हुआ है, एंड वी वेंट अबाउट दैट चेस वेरी कैलिब्रेटेड तरीके से। कोई आपने जिस तरह वसीम बोला कि कोई शुरू में कोई इतनी हमने वो नहीं की। अभी इस वक्त आप अगर ड्रेसिंग रूम में होते तो इस वक्त क्या कॉन्वर्सेशन हो रही होती आपकी ओपनर्स के साथ, पहले जो आपके 3 बल्लेबाज हैं, आप क्या कह रहे थे फॉर द चेस टू? और याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेस है, यू हैव सम एक्सीलेंट फास्ट बॉलिंग दैट इज गोइंग टू बी कमिंग टुवर्ड्स यू। व्हाट वुड बी योर ब्रीफ टू द बॉयज? आई गेस जो डेविड वार्नर और मिचेल मार्श दोनों ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। अगर आप उनके दोनों के टोटल रन्स मिलाएं तो वो तकरीबन बन जाते हैं 284 रन्स। सो वो 2 बैटर्स ने किए हैं, आपके पास 6 बैटर्स हैं, फिर आपके पास ऑलराउंडर्स भी हैं। अगर आप नीचे आ जाएं तो किसी ने कोई कुछ नहीं किया। ठीक है, इस वक्त मोराल डाउन ज़रूर होगा ड्रेसिंग रूम में, बट सिर्फ 50 ओवर का गेम हुआ है, हाफ ऑफ द गेम इज़ लेफ्ट, और आपने ऐसा नहीं है कि इतना टारगेट चेज़ नहीं किया। हाँ, 25-30 रन ज़्यादा हैं, लेकिन आपने 345 रन्स बनाए हैं, और आपका कैप्टन भी आउट हुआ, उसके बावजूद वो रन्स बने हैं। तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग होप। और सिर्फ ये है कि अपने आप को बैक करें, ये नहीं करें कि हम 367 का टारगेट चेज करना है। डोंट थिंक अबाउट दैट, जस्ट प्ले नाइसली, बिकॉज दिस वेन्यू अलाउज यू टू प्ले कन्वेंशनल शॉट्स, और छोटा ग्राउंड है, बॉल स्पिन भी नहीं हो रहा, और मीडियम पेसर्स के लिए रन्स बचाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ जो उनके मेन वेपन है अर्ली ऑन, जॉश हेजलवुड एंड मिचेल स्टार्क, इनसे आउट नहीं हो। नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट्स खेलें, क्योंकि वो भी रन्स जो है देंगे। वेन्यू ऐसा है, इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ा 150 पहले 4 में से, और एक 70-80 इनिंग्स जो है वो आपको इस टारगेट तक पहुंचा सकती है। बैक ऑफ द माइंड जो हमने देखा कि अब्दुल्ला शफीक को बॉल लगा, कैच करते हुए इंजर हुए, उसके बाद वो फील्ड पे वापस नहीं आए। अभी तक उनकी कोई खबर भी हमें नहीं आई कि वेदर लेकिन ऐसा अगर वसीम भाई हो तो अल्लाह ना करे कि वो ब्रोकन फिंगर हो, लेकिन अगर आपको फील्ड में बॉल लगे तो स्टिल यू कैन ओपन द बैटिंग। तो आई एम श्योर शायद वो उन्होंने थोड़ा सा ये सोचा हो, चलो आप इसे फील्ड में नहीं भेजते, बचा लेते हैं ताकि हमारा जो ओपनर है वो ज़ाया ना हो। अच्छा, सो उन्होंने कहा कि मिचेल स्टार्क एंड हेजलवुड एंड एवरीबॉडी, क्विक क्वेश्चन, स्क्वायर बाउंड्रीज आर स्मॉल, और आपने कहा कि जी शॉर्ट पिच डिलीवरीज बहुत ज़्यादा टेस्ट करते हैं पाकिस्तानी बैट्समैनों को। डू यू थिंक दे विल स्टिल गो फॉर दैट विद दोस शॉर्ट बाउंड्रीज? इज दैट व्हाट द स्ट्रेटजी इज गोइंग टू बी, कि हमने शॉर्ट बॉल के ऊपर टेस्ट करना है अभी पाकिस्तानी बल्लेबाजों को? देखिए, वो कोशिश करेंगे। एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है कमिंस को और हेजलवुड को, अच्छी जगह से बॉल करेंगे, बैक ऑफ लेंथ, क्योंकि हाइट है उनकी, बट वो स्टिल बाउंसर्स पे पाकिस्तान को कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे ट्रैप करने की। मिचेल स्टार्क जो है इनिशियली अंदर गेंद लाते हैं और वो अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी सॉरी हाउ दे टैकल। और मेरे ख्याल में जैसे मलिक ने बात की है ना, बड़ा इम्पोर्टेंट है नया बॉल पाकिस्तान कैसे खेलता है। 7 रन की एवरेज है, बाउंड्री एंड ओवर, ये सिंपली पाकिस्तान को देखना है कि हम वो इनिशियली जैसे बैट्समैन नॉर्मली ऐसे चेज में करते हैं कि आपको ओवर के शुरू में कोशिश करना है, कहीं अगर आप बाउंड्री ले लेते हैं पहले 1-2 बॉलों पे, और इसी को लेके आप चलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क के साथ, थोड़ा लंबा लेके जाते हैं, जब तक ड्यू आती है तो पाकिस्तान
स्टैंड आउट एक जो हम कह सकते हैं कि एक चांस पाकिस्तान का बन सकता है लेटर। ये जो कंडीशंस है ये इमाम और बाबर जिस तरह बैटिंग करते हैं उनको बहुत सूट करती है, सो दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और एंड बोथ ऑफ देम दे आर केपेबल ऑफ स्कोरिंग बिग हंड्रेड्स। वो करेंगे तो ये चेज हो सकता है। अच्छा, ये आज ये 367 जो ऑस्ट्रेलिया ने लगाया है तो बहुत बड़ा टोटल है, लेकिन इसमें जो ज़बरदस्त बात है वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो इस वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड जो है वो सेटअप किया है। ही इज़ बोल्ड द बेस्ट बॉलिंग फिगर्स विद दिस विद दैट इकोनॉमी रेट 10 ओवरों में 54। लुक एट दैट, ही गोज राइट ऑन टॉप ऑफ दैट टेबल। रियली वेल डन एंड अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान, बिकॉज शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस के बारे में बात हो रही थी। आज उन्होंने लग रहा था कि वो जोर लगा रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं शुरू में नए गेंद के साथ भी, एंड देन व्हेन ही केम बैक बॉल हल्का फुल्का रिवर्स हो रहा था, he utilized that really well, especially Also, he wasn't well, right? And दूसरी चीज़ है कि जब आप पे इतना प्रेशर हो जाए, प्रेशर आ जाए कि आपका जो दूसरा स्ट्राइक बॉलर हारिस राउफ उसको इतना हैमरिंग हो रही हो, and then to come back and do that is really well done. So Shaheen Shah Afridi there looking really good today, and that's a good sign for Pakistan. What are we hoping from our middle order today? We need them to also come to the party. Wasim? Yeah, we do. We need all of them to come to the party. The openers, the middle order, the number 3, the number 6, the number 7. Chasing 367, it's going to take some, some effort. Right. Opening start अच्छा चाहिए, ऊपर से विकेटें गिर जाती है, उसके बावजूद होप्स हाई रखनी चाहिए। ऐसे टोटल में, ऐसे मैच पे, बॉडी लैंग्वेज नहीं गिरनी चाहिए। अगर 2 विकेटें गिर भी जाती हैं तो हैव अ बिलीफ in your batters and in yourself. Yes, you can chase against one of the best bowling attacks. You have nothing to lose, Wasim bhai. Yeah. Just take it as an opportunity. Yeah. Absolutely, and we have the Shaheen Shah interview ready. Let's listen in. शाहीन, पूरी कौम को फिक्र है, शाहीन शाह अफरीदी फिटनेस प्रॉब्लम है, रगिश है, स्लगिश है, विकेट नहीं ले रहा। आप क्या कहेंगे अपने फॉर्म के ऊपर? नहीं, देखिए कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस दे, और हुआ था फीवर, हुआ था 1 वीक से 8 दिन से, चेस्ट इन्फेक्शन था। अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी अच्छी जा रही है और काफ़ी इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं। होपफुल है इंशाल्लाह आज की मैच के हवाले से इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस करें और हम जीतें। कुछ 1-2 दफ़ा आपने नी को भी पकड़ा, गिरे भी, तो लोगों को सबको आपके घुटने की दुआएं करना शुरू कर दी। नहीं, वो बॉल लगा था और एक दफ़ा डाइव से भी हुआ था, बट ऑफ कोर्स आप खेलते हैं तो आपको चोटें लगती रहती है, ये पार्ट ऑफ द गेम है और हम हर चीज़ के लिए रेडी है। और एज अ टीम अल्हम्दुलिल्लाह लड़के पर उम्मीद है कि ये मुकाबला हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है और हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इसको जीते। अच्छा, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं रादर देन लाइन लेंथ पर तवज्जो। आपकी शुरू में यॉर्कर्स पहले बहुत कम ज़्यादा हो रही हैं, फुल पिच बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कुछ फुल टॉस हो रही हैं, तो ऐसा कुछ है कि एक्स्ट्रा ट्राई कर रहे हैं? मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा ट्राई तो मैं नहीं कर रहा, जैसे मैं 6 साल से कर रहा हूँ वही कोशिश कर रहा हूँ कि उसी चीज़ को अप्लाई करूँ। चीज़ ट्राई टूर्नामेंट में कोई नई चीज़ नहीं लेकर आ सकता एकदम ही, क्योंकि जो रिदम आपका है, जो सक्सेस आपको मिली है, उसी को मेरे ख्याल से ट्राई करना चाहिए। जो चीज़ें हैं मेरी उसी को ट्राई कर रहा हूँ। एक्सपर्ट जो भी कह रहे हैं, मैं जैसे मुझे सक्सेस मिली है मैं उसी पर ट्राई करूँगा। विकेटें कितनी रिस्पॉन्सिव हैं? देखिए जाहिर सी बात, आप देखें कि नए बॉल काफ़ी आराम से मैनेज हो रहा है और ज़्यादा स्विंग नहीं मिल रहा है। इंडिया के हमें पता भी था कि स्विंग इतना नहीं मिलेगा, बट जो लाइन और लेंथ है उस पर मैं कोशिश करूँगा। जाहिर सी बात है थोड़ी सी मिस हो रही है मेरी लेंथ, और मैं कोशिश करूँगा कि उसको ज़्यादा हिट करूँ। पेस की आपने बात की, पेस में यूजुअली यही करता हूँ 135 140, तो इसी को मैं कैरी ऑन करूँगा। यूजुअली कहा जाता है, कहावत मशहूर है कि फास्ट बॉलर्स हंट इन पेयर। आपका पेयर नसीम के साथ बहुत अच्छा बना हुआ था, तो कितना मिस कर रहे हैं नसीम को? देखिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बेस्ट बॉलर अभी मौजूद है और उनके साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है और वो परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, तो वी आर होपफुल कि वी प्ले वेल एंड इंशाल्लाह हम आए इसलिए कि ये वर्ल्ड कप जीते। कैंप में मूड क्या? All right, there you have it, शाहीन शाह अफरीदी before the match today। आज उनसे हमारी बात हुई और इसके साथ ही हम कुछ ही लम्हे बाद आपको ले चलेंगे वापस बेंगलुरु, where the Pakistan team will start their chase. I'd like to thank my panelists. Thank you Shoaib, thank you Moin, thank you Misbah, and thank you Wasim. We are going to be back after the next 50 overs. Good luck, Team Pakistan.